Utsav festival. So I would like everyone to please first of all clap for yourself. Because we all are here at the third day of festival with full dedication. Self-appreciation is the best thing. Give yourself credit. You have grown more and done more good than you have realized. Now, before starting with the program, I would like everyone to please join your hands and do the prayer. जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको मन में याद करें कि आज तीसरे दिन पर आप यहाँ से जो भी सीखेंगे और आपने 3 दिन में जो भी सीखा आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें और आप दूसरों की से बताकर उनको सीख दें और उससे आपकी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में एक बेहतर चेंज आए। I would request everyone to please mute their mics. Starting off, now I would like to congratulate our partners who came up with this innovative idea of taking care of mind, body, and soul. Firstly, I would like to introduce with you all our first collaborator, Ms. Ranjana Singh. She is the secretary of Awahan, the New Voice, along with the HCL. She gives training and entrepreneurship to SHGs and has been awarded by the President. Gratitude to ma'am. Now, I would like to introduce our second collaborator, Mr. Sandeep Dixon. He is the co-founder of Poetic Atma Foundation, Kavya Granth, and Ghazal Mubarak community. And he has performed in more than 80 plus events on a national level and also judged the literature competitions in a reputed institute. Gratitude to sir. Now, I would like to thank our CHOs, Ms. Ruby ma'am and Ms. Ranita ma'am for continuously making efforts, inviting CHOs worldwide and making this 3-day session a grand success. Ms. Ruby has been awarded by the National Health Mission and Ms. Ranita has been awarded by the President. Now, I would like to pay gratitude and introduce with you all our trainer who has been training towards in these 3 days, and today also she will give us the meditation training, Ms. Archana Singh. She is the founder of Miracle Rituals. She is an international peak performance strategist, author of the book Let's Meditate Our Way to Inner Transformation. She is a social activist, trainer, and motivational speaker, as well as she has working since the first lockdown on providing free meditation classes worldwide and to make this world a better place. Clap for all our founders. Now, the most awaited moment, I would like Ranjana ma'am to introduce our chief guest with all of us. Over to you, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इस हेल्थ फेस्टिवल पे एक हम लोगों ने जो मुहिम लॉन्च किया है उसके लिए हम सारे साथियों का कि जो समय से ज्वाइन कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से हीरालाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वैश्विक जैसी महामारी में इतनी व्यस्त समय निकाल कर आपने हम लोगों का इनवाइट लेटर एक्सेप्ट किए और आज हमको समय दिए हैं। और सर अभी नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशनल मिशन डायरेक्टर भी हैं और आप इसके पहले बादा में डीएम थे और जैसे आपका नाम है वैसे आपकी खूबियां भी हैं। हीरा किसी की पहचान के लिए मुहताज नहीं होती है। आपने बादा में रोजगार, हेल्थ और जल पे लेके इतने बड़े मुहिम पे आपने काम किया और एक आपका एक सपना है मॉडल विलेज गांव को लेके एक पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अपनी पहचान बना चुके हैं। और सर का कहना है कि जब बादा में थे तो वहां पे योग मित्र करके हर ग्राम पंचायत हर ब्लॉक में नियुक्ति किया गया था कि हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, हमारे ग्रामीण के लोग, हमारे किसान साथी सब स्वस्थ हों, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का आभास होता है। और आपका कहना था कि जब हम योगा करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है,
हमारी कार्य करने की क्षमता होती है, एक उत्साह हमारे अंदर होता है, साहस होता है, जैसे चीजें हमारे शरीर में विकास होता है और हम एक सकारात्मक सोच के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अर्चना जी का, कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेनर भी हैं और साथ में एक लेखिका भी हैं, ऑथर भी हैं। आपकी बुक जो है लेट्स मीडिएट करके एक बुक है जो ऑनलाइन काफी इसकी डिमांड भी है, और लगातार 1 साल से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय देशों में ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रही हैं। इसी क्रम में मैं रमेश सिंह राजपूत जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, कि जो बादा में योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और आपने जीवन में एक लक्ष्य बना लिया है कि योग करना, योग कराना। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ में हमारी 2 बहनें हैं, अनीता, रनीता और रूबी, जो मणिपुर से रनीता जी हैं, रूबी हमारी श्रावस्ती से हैं, और अच्छे काम करने के लिए 2000 में राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ सम्मानित भी किया गया है। सर आज ही बताओ। हाँ सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सर जो स्वस्थ फेस्टिवल है, हेल्थ फेस्टिवल महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये 21 जून तक 1 महीने का सर प्रोग्राम होगा। भारत में सबको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपके हाथों से, आपके 2 वचनों से हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ कि पूरे महीने में क्या, एक्चुअली एक ऐसा करो सबको म्यूट करा दो उधर से, म्यूट करा दो, सबको म्यूट हो सकता है जो टेक्निकल आदमी है। टेक्निकल टीम प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। हाँ एक्सेप्ट मी और एक्सेप्ट फ्यू। हाँ टेक्निकल टीम प्लीज डू द नेक्स्ट। कोई बोलते रहेगा। हाँ चलिए, हाँ ठीक है। तो क्या मुझे आप ब्रीफ में बता सकते हो, क्योंकि देखो इस तरह से हम वेबिनार खूब कर रहे हैं, इकट्ठा होकर भाषण खूब देते हैं, और सर भी म्यूट हो गए, प्लीज सर को अनम्यूट कर दें, सर भी म्यूट हो गए। हम ये जानना चाहेंगे कि अब अगले 1 महीने में आप लोगों का क्या प्रोग्राम है। दैट्स आई वुड लाइक टू नो, जस्ट फॉर माय सेक ऑफ नॉलेज, देन आई विल स्पीक। ओके अर्चना जी कंटिन्यू। नमस्ते सर, मैं अर्चना सिंह मेडिटेशन सिखाती हूँ। हम ये चाह रहे हैं कि हम 4 हफ्ता में 4 तरीके के चीजों को हफ्ते में बांटे। हम 2 योगा का स्टेप 1 हफ्ते में सिखाएंगे, जब वो परफेक्ट हो जाएंगे तो दूसरे हफ्ते में 2 योगा का स्टेप और सिखाएंगे। फिर जब चौथा हफ्ता आए, तीसरा हफ्ता आएगा तो 2-2-2 6 हो जाएगा, और फिर जब चौथा हफ्ता आएगा तो 8 आसन आ जाएंगे। एक्चुअली सर चीजें ये हैं कि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। जो हमारा योग का जो हमारा मेन चीज है कि हमें यूनियन होना है, हमारे पूरे जो वेगस नर्व्स है वो एक साथ जुड़कर कॉन्शियसनेस से यूनियन होना है। योग का मतलब ही यूनियन होता है। तो जब तक हम वो सही ढंग से नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज को कारगर नहीं कर पाएंगे। तो हम 4 हफ्ता में इसको 2, 4, 6, 8 इस भाग में योगा को बांटे हैं। हम चाहते हैं जो करे वो परफेक्शन के साथ करे, वो 4 चीजें सीखे, लेकिन 4 चीज अच्छे से सीखे। ये हो गया योगा का पार्ट। दूसरा हमने ब्रीदिंग का है। ब्रीदिंग में हम क्या करेंगे, हम पहला 15 दिन हम रिलैक्सेशन ब्रीदिंग कराएंगे। जो हमारा 2:4:1 का रेशियो होता है, जो मेरी इसका ब्रीदिंग का, हम वो डिफरेंट रेशियोज जो रिलैक्सेशन के लिए है, जो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए है, जो आपके मन को शांत करने के लिए है, तो 4 तरीके के ब्रीदिंग सिस्टम हम सिखाएंगे इसमें। उसके बाद हम आते हैं मेडिटेशन पे। मेडिटेशन में हम उन्हें 4 हफ्ता में 4 तरीके के मेडिटेशन सिखाएंगे। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन बस ये है कि एक जगह हम बैठ जाएं, 4 घंटा 8 घंटा बैठे रहें, इसीलिए लोगों को लगता है कि मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो मेडिटेशन
का एक्चुअल मीनिंग है मेडिटेटिव स्टेट में रहना। मेडिटेशन ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो किया जा सकता है, ये एक अवस्था है जिसमें आप रह सकते हैं। और इस अवस्था में जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैंने अपने बुक में ही 100 से ज्यादा तरीके लिखे हैं। विज्ञान भैरव, रुद्रमाला तंत्र हमारे एशियंट बुक है जिसमें मेडिटेशन के बहुत बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं। हर इंसान अलग स्वभाव का होता है, अलग प्रकृति का बना हुआ हो। किसी का राइट ब्रेन चलता है, किसी का लेफ्ट ब्रेन चलता है, किसी को दिखने में एक्सपर्ट होता है, कोई सुनने में एक्सपर्ट होता है। तो हर किसी के लिए एक ही मेडिटेशन का तरीका नहीं हो सकता है, और शायद यही नॉलेज लुप्त हो गई थी और इसीलिए आज के डेट पे कोई मेडिटेशन नहीं करता है। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का जिन्होंने योगा को घर घर पहुंचाया, और मैं विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ, इस मंच को से अपनी बात रखना चाहती हूँ कि मेडिटेशन भी घर घर जाए। और मेडिटेशन बहुत इजी है, ऐसा नहीं है जो हमारा मिथ है कि मेडिटेशन के लिए शांत मन होना चाहिए, हम कुछ ना सोचे ऐसा हो, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि आप मेडिटेटिव स्टेट में रहें, आप मेडिटेटिव अवस्था में रहें, और इसके लिए 100 से ज्यादा विधि है। देखने के लिए अलग विधि है, खाने के लिए अलग विधि है, और ये सारे ऐसे टेक्निक्स है जो हमें मोक्ष को दिलाते हैं। ये नॉलेज लुप्त हो गई है, कहीं खो गया है। मैं इसे पुनः चाहती हूँ हर कोई अपने लाइफ में यूज करे। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो पहला हफ्ता हम सुनने वाला मेडिटेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। सुनने वाला मेडिटेशन का हम एक एग्जाम्पल देते हैं सर आपको। जब हम रात में सोते हैं अपने बिस्तर पे और तकिया पे अपने सर रखते हैं, तो अगर हम ध्यान से सुने तो हमें ऐसी करके आवाजें आती हैं। लेकिन हम शहर के आवाजों में इतना घूम गए हैं कि हमें वो आवाजें नहीं आती है। गांव पे तो बहुत अच्छे से आ जाता है, लेकिन शहर में नहीं आती है। लेकिन अगर आप तकिए पे लेटे, और तकिया इतना ही होना चाहिए जो इस गैप को कवर करे कि आपकी बॉडी स्ट्रेट हो सके, और आप अगर जब ऐसे सोएंगे तो आपके कान में धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ऐसी आवाजें आने लगेगी, और धीरे 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 और भी ऐसी आवाजें आपको सुनाई देने लगेंगी जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। तो इतना आसान है कि आपको लेटना है, अपना स्पाइन इरेक्ट रखना है और कान लगा कर रखना है और सिर्फ ध्यान से सुनना है। पूरी रात आप मेडिटेशन में। एक ऐसा ही मेडिटेशन खाने को लेके है, दूसरा जो हमारा रहेगा वो खान पीन को लेके रहेगा दूसरा हफ्ता का, जिसमें हम खाएंगे और आंख बंद करके अवेयरनेस में चले जाएंगे। मेडिटेशन का मतलब ही होता है कि हम अवेयरनेस में रहें, हम ना पास्ट में रहें ना हम प्रेजेंट में रहें, हम अवेयरनेस में रहें। जब हम अवेयरनेस में रहते हैं तो हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, हम मेडिटेटिव अवस्था में होते हैं। हम मेडिटेटिव अवस्था में ही हो सकते हैं, हम मेडिटेशन में जा नहीं सकते। तो हम उस अवेयरनेस में आने के लिए हम खाने के साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आपने मुंह में डाला और आंखें बंद की, और एक एक जो स्वाद उसमें आ रहा है और जो फीलिंग मन में आ रही है उसे सिर्फ दृष्टा बन के देखना है, सिर्फ अवेयर करना है। ये मेडिटेशन है। तो ये घर घर मुझे पहुंचाना है। इतना आसान मेडिटेशन है, हम दिन भर मेडिटेशन में रह सकते हैं, हम दिन भर मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। इतना आसान है, हमें पता होता तो हम करते। तीसरा हफ्ता जो है हम मेडिटेशन करेंगे बिलीफ सिस्टम का। बिलीफ सिस्टम हमें क्यों चाहिए? जैसे हमारा ये शरीर एक हार्डवेयर है और हमारे बॉडी में हमने आज तक जितना इंफॉर्मेशन लिया है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। हम जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से ग्रहण करते हैं वो अंदर उस बिलीफ सिस्टम से प्रोसेसिंग हो जाता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि दुनिया बहुत खराब है, वो कुछ भी हो जाए सिर्फ अपना ही सोचती है, तो आपको कोई कुछ भी बोलेगा हम उसको उसी तरीके से लेते हैं। हमारा अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो फटाफट प्रोसेसिंग होके आउटपुट वही निकलता है। तो बिलीफ सिस्टम हमें अंदर सेट करना है। ऐसा ही एक बिलीफ सिस्टम है कि दुनिया में दो है ही नहीं, देयर इज नो डुअलिटी, देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये इल्यूजन है जिसमें हम आप सब बटे हुए हैं। ये एक बिलीफ सिस्टम है। जब हम इस बिलीफ सिस्टम में जीते हैं तो हम खुद का ईगो छोड़ते जाते हैं और हम उस एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस परमात्मा में लीन हो जाते हैं और दो नहीं रह के एक हो जाता है। और यही गीता का भी उद्देश्य है। फोर्थ में हम इसी बिलीफ सिस्टम को प्रैक्टिस में लाएंगे। प्रैक्टिस में विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के तहत होता है। सर जब मैं फॉरेन में करवाती हूँ मेडिटेशन
तो मैं देखती हूँ कि लोग हमारे मेडिटेशन से विजुअलाइजेशन प्रोग्राम बनाए हैं। कोचिंग इंडस्ट्री 1 बिलियन का बिजनेस कर रही है। जो हमारा विजुअलाइजेशन है उसका यूज करके, जो हमारा मंत्रा है उसको यूज करके, इनकैंटेशन कहते हैं, अफर्मेशन कहते हैं, जो आजकल युवाओं में बहुत प्रचलित है। आप देखते होंगे कि हमारे बच्चे कहते रहते हैं मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। ये भी एक मंत्र जैसा ही है, जैसे हमने हमारा ओम मंत्र था, मंत्र से भी हमारा मेडिटेशन होता है। तो इसी को विदेश के लोग अफर्मेशन कहकर बेच रहे हैं और $1 मिलियन की इंडस्ट्री है कोचिंग इंडस्ट्री। इनकैंटेशन, विजुअलाइजेशन, न्यूरलिस्टिक प्रोग्रामिंग करके, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग करके 1 बिलियन से ज्यादा की मार्केटिंग है। जब हमारा है, सनातन धर्म का है मेडिटेशन, उसमें हमारे पास 100 से ज्यादा तरीका है, उससे हम अपने आप को बदल सकते हैं। वो फॉरेनर आज अलग अलग नाम से उसे बेच रहे हैं, तो हम इंडिया वाले क्यों पीछे? मेरा एक ही मिशन है कि मैं घर घर मेडिटेशन पहुंचाऊं, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे साथ लोग रोज जुड़ेंगे और हम जो नया नया तरीका बताएंगे वो करें। क्योंकि हर किसी को देखने वाला मेडिटेशन शायद ना वो मेडिटेटिव स्टेट में जा पाए, सुनने वाले से कुछ लोग शायद ना मेडिटेटिव स्टेट पे जा पाए। तो जो सुन सकते हैं वो सुनने वाला मेडिटेशन को यूज करे, जो देखने में अच्छे हैं वो देखने वाला यूज करे, जिसका राइट ब्रेन अच्छा है वो विजुअलाइजेशन वाला करे, जिसका लेफ्ट ब्रेन अच्छा है वो ब्रीदिंग का करे। तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन है डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के लिए। तो बेसिकली हमारा है, हम हर हफ्ता 2 योगा करके ऐड करते रहेंगे। 8 योगा आसन को परफेक्शन के साथ सिखाएंगे। हम हर हफ्ता 4 ब्रीदिंग स्टाइल सिखाएंगे जो कि वो परफेक्ट हो जाए उसमें, और हर हफ्ता हम एक एक तरीके के मेडिटेशन को सिखाएंगे, तो 4 तरीके के मेडिटेशन वो सीख लेंगे। और साथ में हम उनसे कहेंगे भी, कहते हैं सुनने का बहुत असर होता है, तो हम उनसे 2 मिनट 3 मिनट मोटिवेशनल बातें भी करेंगे। ये हमारा पूरा प्लान है हफ्ता का। थैंक यू सर। ओके, तो ये जो आपका प्लान है, तो ये आपके ऑडियंस कौन होंगे? हु विल बी द ऑडियंस? ऑडियंस कौन होगा आपका? इसको कौन देखेंगे? सर हमारा ऑडियंस हर कोई होगा जो भी आना चाहे। हमने सारे सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर दिया है। हमारे एसएचजी तो होंगे ही, आवाहन एसएचजी पर काम करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, वो होगा ही। मैं युवा के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनको मेडिटेशन कराना, उनको अपने ऊपर काम करना, मेरा एक मुहिम है, बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, सशक्त हम सशक्त भारत। हाँ, ये ओपन होगा। दूसरी बात, टाइमिंग क्या होगी आपकी? टाइमिंग सर 7 से 8 सुबह। जी सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलिए, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड वर्क, और ये अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊं कि बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी शुरुआत ऐसे एक छोटे से होती है। तो वो जो छोटे से शुरुआत होती है वही इम्पोर्टेंट है, बड़ा बरगद इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सीड सोचना और डालना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आप लोगों के बारे में बहुत तो नहीं जानता था, अचानक मुझे मैसेज मिला इसका, रंजना जी का, कि मैं ऐसे आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे है। तो हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि ऐसे है, वो जानती है कुछ। तो हमने कहा ठीक है, ओके। क्योंकि योगा, हेल्थ मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसीलिए मैंने इसको एक्सेप्ट किया। मेरे बहुत सारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जल जंगल जमीन। ये जल जंगल जमीन, जमीन से ही जुड़ी बात है, मैं बाद में बात करूंगा। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द इनिशियल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सेंटेंस ही मेरा मतलब ये गीता है। हैप्पी रहने का, खुशहाल रहने का, स्वस्थ रहने का जो गीता ज्ञान है मेरे लिए, हर आदमी का अपने सोचने समझने का तरीका होता है। मेरा गीता ज्ञान है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसकी हिंदी है बचाव इलाज से बेहतर है। ये छोटा सा सेंटेंस 5 शब्दों का वो कह रहा है कि बचाव अच्छा है, बचाव अच्छा है, प्रिवेंशन अच्छा है। किससे? दवाई से, क्योर से। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हमारे देश में जब से हम आजाद हुए, हम लोग जो अच्छा है उस पर कोई काम नहीं करते। क्या? बचाव का कोई काम नहीं करते जो अच्छा है। जो उससे खराब है या उससे कम अच्छा है, पॉजिटिव बोलो, उससे कम अच्छा है, वो है दवाई करना। तो
तो हम दवाई पे लगे हुए हैं, खूब हॉस्पिटल खोल रहे हैं, खूब मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, खूब नर्स कॉलेज खोल रहे हैं, और इस पर हमने पूरी ताकत झोंक दी, और जो उससे अच्छा था उससे हमने मुंह मोड़ लिया। और उसके वजह से क्या हुई कि हमारे देश में लोगों की हैप्पीनेस गायब हो गई, बीमारियां खूब बढ़ी, और हम लोग भले ही अपने को कुछ भी माने, हम खुशहाल हैं, फलाना है, ढिमाका है, हम लोग गवर्नमेंट में लगभग 70 तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, और सब में डायबिटीज देखो सबको है, हार्ट की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हम कह रहे हैं हम खुश। तो ये जो हमने गलती की, हमने बेसिक गलती की है, हमने बेसिक गलती की, हम क्योर पे चले गए, हमें जाना कहाँ था, प्रिवेंशन पे। हम दवाई पे चले गए, हमें जाना कहाँ था, बचाव पे। तो ये बात, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग आज से ये शब्द रट लीजिए, मतलब ये सेंटेंस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड बचाव इलाज से बेहतर है। आप लोग कहीं बात करिए, आप लोग जो भी ट्रेनिंग देते हैं यहीं शुरू करिए, पहले आप उसको बताइए तो कि वो योगा क्यों करे, मेडिटेशन क्यों करे, आहार विचार क्यों ठीक रखे, पॉजिटिव क्यों सोचे, क्योंकि ये सब प्रिवेंशन में आता है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता, कोई आदमी बीमार होकर दर्द नहीं झेलना चाहता, कोई आदमी दवाई में अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ माहौल बन गया है कि हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। ये बात सही है, अभी आपने भी कहा, ये सच्चाई है। इस गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को और सारे सरकार को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इन लोगों ने फोकस चेंज किया, कहां से, क्योर से फोकस चेंज करके लाए कहां पे, प्रिवेंशन पे, बचाव पे। आयुष मंत्रालय बनाए, योगा को ले गए कहां पे, यूनाइटेड नेशंस में योगा डे का डिक्लेरेशन कराए, पूरे देश में योगा। ये क्या हुआ कि जो हम केवल बचाव पे देख रहे थे, अरे दवाई पे देख रहे थे, वहां से धीरे धीरे हम अपने नजर को हटा करके और ले जा रहे हैं कहां, बचाव पे। अब बचाव क्या है, बचाव में खर्चा नहीं है, बेसिकली दवाई खर्चीला है और बचाव खर्चीला नहीं है, लेकिन वो खर्चीला काम हम करते हैं और जिसमें खर्च नहीं है वो नहीं करते। कोविड-19 से हम लोग 1 साल से गुजर रहे हैं, और कोविड ने यही बात सिखाई। कोविड का जो मंत्र है, कोविड लेके ही आया, कोविड नाराज है, अब आया है हमें समझाने। देखो, कहा जाता है एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, उसको कह रहे हैं कि सुअवसर में बदलो, आपदा को अवसर में बदलो। तो आप अगर कोविड को ऐसे देखोगे कि वो हमारा दुश्मन है तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप वो कहो हमारा मित्र है, वो हमें कुछ बताने आए हैं, अच्छा उसकी बात को वो कह रहा है, वो रटवा रहा है क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो कह रहा भैया दवाई वाई पे मत जाओ, प्रिवेंशन पे जाओ। कैसे, कोरोना में 99% हम लोग क्या करते हैं, मास्क बांधो, प्रिवेंशन है, क्या है, हाथ धुलो, सफाई रखो, प्रिवेंशन है, दूरी रख के बात करो, प्रिवेंशन है, भीड़ में ना जाओ, प्रिवेंशन है। तो 95% प्रिवेंशन करना है, और जो इस प्रिवेंशन को करेंगे वो बीमार नहीं होंगे, उन्हें अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कोरोना की दवाई में 90% प्रिवेंशन काम आ रहा है और 10% क्योर काम आ रहा है। ये मैं आपको समझाने के लिए, मेरे पास कोई आंकड़ा, ये कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है। तो कोरोना हमें ये बताने आया है कि प्रिवेंशन पे जाओ। अब प्रिवेंशन क्या है, क्योर तो सबको पता है, बीमार हो जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, L1 L2 L3 हॉस्पिटल में जाओगे, वो लोग एक प्रोटोकॉल, इसका कोई बहुत खास दवाई भी नहीं डेवलप हो पाया है। वैक्सीन डेवलप हुआ बड़े अफरा तफरी में, क्योंकि नई बीमारी थी तो उसकी डिमांड नहीं पूरी हो रही, वो सब क्या बवाल है, यू पीपुल नो बेटर देन मी। तो अगर बचाव क्या है, इसमें कुछ बचाव नहीं है। बचाव जो हमारी पुरानी आदतें थी उसको करना है। क्या, पहला तो है क्या कि हम लोगों को मिट्टी में खाना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में जाना चाहिए। हम नक्शेबाजी में बोन चाइना के कप में चाय पीते हैं, कुल्हड़ में चाय नहीं पीते। बोन चाइना, हम अगर देहाती भाषा में कहें तो बोन माने हड्डी, अब उसको चाइना की हड्डी या चाइना मतलब
अगर हम लोग चाइना मतलब हड्डी वाले कप में पिएंगे जो कि नुकसानदेह है तो हम बड़े आदमी हैं, और अगर कुल्हड़ में पिएंगे तो हम गरीब हैं। हमने अपनी सोच ही खराब कर ली, एक बात। दूसरी बात, अगर हम गुड़ की चाय पिएंगे तो कहेंगे गरीब है, और चीनी की चाय पिएंगे तो अमीर है, और चीनी खराब है और गुड़ अच्छा है। तो गुड़ अच्छा है, कुल्हड़ अच्छा है, उसको हमने खराब बता दिया, और जो खराब है उसको अच्छा बता दिया। ये जो हम नक्शेबाजी में चले गए हैं, हमने अपनी वेशभूषा छोड़ दी है, हमने नए नए हम स्टाइल मार रहे हैं। ये जो दिखावापन, स्टाइल और नाटक में जो हम फंस गए हैं, ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। तो मेरा ये मानना है, मैं इसको प्रमोट करता हूँ, मिट्टी के बर्तन में खाना चाहिए, मिट्टी के बर्तन का यूज करना चाहिए। और मिट्टी के बर्तन की अब फैंसी फैंसी डिजाइन आ गई, मजबूत आ गया। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा, किसी को बीमारी थी कुछ, डॉक्टर ने कहा तुम मिट्टी के बर्तन में सब कुछ करो, खाओ पकाओ, जैसे पहले जमाने में। 2 साल में उसकी मर्ज खत्म हो गई, क्यों? वो नेचुरल है। दूसरी बात, और हम आदत क्या है, रात के 3-3 बजे तक व्हाट्सअप कर रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सो। 6 बजे तक, जैन धर्म में 6 बजे तक खाना, सूर्यास्त के पहले खाना खा लेते हैं, वो साइंटिफिक है। आप 8 बजे तक खाना खाओ, 9 बजे 10 बजे तक सो जाओ, सुबह उठो, योगा करो, प्राणायाम करो, जो भी करना है करो। आप सुबह उठ जाइए और उठ के गर्म पानी नींबू और शहद डाल के पी लीजिए, कोई बीमारी, केवल उठ के इतना पानी पी लो, कुछ नहीं होगा। ठीक। पहले जमाने में हम लोग गांव में रहते थे, खा जाते थे, उठते थे, बैल को, जानवर को खिलाते थे, हल जोतने जाते थे, हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहनें पानी निकालती थी कुएं से, झाड़ू लगाती थी, योगा हो जाता था। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हो गया और योगा हो गया। अब वो सब खत्म हो गया है, सब व्हाट्सएप पे। तो सुबह जगना है, ये करना है। और अभी आहार, फूड इज मेडिसिन कहते हैं। आहार, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के टच में आया, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही साहब, जैसे ये डीजल वाली गाड़ी होती है, गैस की गाड़ी होती है, पेट्रोल की गाड़ी होती है, ऐसे हमारी बॉडी भी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है। और वो पीएच वैल्यू से डिसाइड होता है कि आपके बॉडी की पीएच वैल्यू 7 है या 7 से कम है या 7 से ज्यादा है, खून टेस्ट से। तो कहे अब आपकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, क्या है, एसिडिक है, और आप एल्कलाइन वाला खाना खा रहे हो, एल्कलाइन बॉडी है, और आप ये खा रहे हो, तो बर्बाद होगा। तो वो नवजोत देख के मुझे बताया कि आपकी ये बॉडी है, और आप वाले बॉडी में पेट्रोल पड़ेगा, जबकि आप डीजल डाल रहे हो, कैसे गाड़ी चलेगी। तो डीजल, यहाँ डीजल पेट्रोल का मतलब जो हम खाते हैं। तो उसने मुझे बताया कि आप एल्कलाइन बॉडी वाले हो, आपका पीएच जो है एल्कलाइन साइड में है, तो आप खट्टी चीजें खाओ, मिर्चा मत खाओ। हमें डिजाइन किया। इसके साथ साथ तो उसने बताया कि आपका क्या कलर पहनना चाहिए, क्या आपको सूट करेगा। जैसे उसने बताया, आप लाल पीले ब्राइट कलर के कपड़े, आपके बॉडी पे कौन सा कलर सूट करेगा, उसने बताया। वो मौर्य जी हैं, हम उनको भी आपसे कनेक्ट कर देंगे। हमें आए, मैं समझता हूँ, मैं इसे विश्वास नहीं करता, आजकल वो हमारे काफी टच में, मैं उनका काफी प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि वो फायदेमंद है। तो फूड के बारे में उनका जो है, उनका नाम ही है नाड़ी रसायन। हमारे बॉडी में ये जो रसायन है, वो नाड़ी में जो जाता है, वो रसायन क्या होना चाहिए, उनका टॉपिक है नाड़ी रसायन। वो कलकत्ता में भी जाते हैं। तो हमें खाने होने में ये बड़ा, क्या खाना चाहिए क्या पहनना चाहिए, हम लोग इसको इग्नोर मारते हैं, हम भी बहुत इग्नोर मारे। लेकिन अब हम ध्यान दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। विचार हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। क्या, चाहे आपका दुश्मन हो, उसकी भी बुराई मत सोचो, मदद करने की सोचो, पॉजिटिव रहो। आपका दुश्मन है, उसकी भी सोचो कि अच्छा हो, भला हो, तो आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे। और एक चीज और हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है, ये जो नाच गाना बजाना, जो हमारे लोग नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, औरतें सोहर गाती थी, इसको हम लोगों ने फुहड़ता में दिखा दिया। जो हमारी कल्चरल ताकत थी, ये नाचना बजाना गाना डांस करना, मतलब जो भी कल्चरल एक्टिविटी, आल्हा गा रहा, कोई बिरहा गा रहा, कोई सोहर गा रहा, इसको हम लोगों ने, जो हमारी ताकत थी, उसको हमने कमजोर और फुहड़ और बेहुदा भद्दा बता करके हम चले गए डिस्को में। इसी तरह से खेल में कबड्डी और कंचा और गुल्ली, जो हमारा नेचुरल गेम था, लुका छिपी, उसमें भाग दौड़ होती थी, उसको हम छोड़ छाड़ के गांव गांव में क्रिकेट घुस गया, विदेशी गेम। ये जो हमने नाटक किया, इससे भी हेल्थ बहुत खराब हुआ। तो मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मादा में जितने भी गेम थे, हर इवेंट में गेम कराता था,
कबड्डी कराओ, जो भी वहां लोकल गेम होता था, और जिससे वो शारीरिक रूप से ठीक हो, मिट्टी में गिरे, मिट्टी में मिले, मिट्टी में पैदा हुए और मिट्टी में ही जाना है। तो ये जो हमारे हमें गेम प्रमोशन है, अगर हेल्थ का पोर्शन ये गेम भी है, हमारा जो पुराना गेम हमारे जमीन हमारे कंट्री के एनवायरनमेंट के हिसाब से कबड्डी, कुश्ती और कंचा खेलना, वो गुल्ली डंडा खेलना, वो हमारा अपना नेचुरल था, वो हमें खेलना चाहिए। लुका छिपी जो भी, हमें वो क्रिकेट और फुटबॉल या विदेशी गेम जो हम ले आए हैं, इसका मतलब मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो करना चाहिए। और एक नक्शेबाजी क्या किया हमने, अभी मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ साइकिलिंग पे, इस पर साइकिलिंग को लेके 8-10 कंट्री मेरा इस पर एक प्रोजेक्ट है कि साइकिल के 6 सेक्टर के, इकोनॉमिकल, हेल्थ, एनवायरमेंटल, 6 सेक्टर में हमने काफी स्टडी किया, इसके 106 फायदे हैं। हम नक्शेबाजी में 4 व्हीलर से ही चलेंगे, तो अगर आप 4 व्हीलर से चलेंगे, पेट्रोल से चलेंगे, हवाई जहाज से चलेंगे, तो 106 तरह के लाभ से, बेनिफिट से वंचित हो जाएंगे। तो हमारा ये मानना है, ठीक है हर जगह नहीं जा सकते, तो हमें जो हम काम कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं 5 किलोमीटर तक, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसे साइकिलिंग पे जाना चाहिए। क्या ये मतलब मेरा मानना, हमें प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से खत्म कर देना चाहिए। झोला में सब्जी लाओ, झोला में चावल लाओ, और प्लास्टिक के बर्तन घर में मत यूज करो। ये भी हमने अभियान चलाया था, प्लास्टिक मुक्त और मिट्टी युक्त प्लास्टिक मुक्त बांधा, बहुत बढ़िया अभियान चला था हम, मिट्टी के बर्तन। तो ये भी करना है, गेम को प्रमोट करना है, और कल्चर को, कैसे भी हम कल्चर पे बात कर रहे थे, कल्चर इज हेल्थ हीलर। आप बाथरूम सिंगर हैं, आप जब गाते हैं तो आपके अंदर की वो निगेटिव ऊर्जा हो जाती है, आप फ्रेश हो जाते हैं। आपका क्यों, आपका वो पैसा, आपको आल्हा गाने का पैसन, आप 10 मिनट 1 घंटा आल्हा गा देंगे, दिन भर ऊर्जा, आपके शरीर में 5 लीटर पेट्रोल भर गया, दिन भर गाड़ी चलाओ। तो किसी को जो भी गाना, नाचना, गाना बजाना आना चाहिए, और उसको करना चाहिए। दुनिया काहे फूहड़ हो, कतई कल्चरल एक्टिविटीज आर हेल्थ हीलर, ये वो याद करो, कल्चरल एक्टिविटीज हेल्थ हीलर। जो ये कथक वथक की नाच करते हैं, इतना पूरी बॉडी को करते, कभी वो बीमार नहीं होते। तो हमें कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करना है, गेम को प्रमोट करना है। जैसे आप लोग काफी कुछ तो कवर किए हो, योगा, आपने आहार पे बोला, आपने मेडिटेशन पे बोला, हमें गेम को भी प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने कल्चर को भी प्रमोट करना, क्योंकि ये भी हेल्थ को बढ़ाते हैं। दूसरी बात, मैं अब मेरे पास तो बात करने की, लेकिन मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूं, फिर भी मैंने बात कर ले भी लिया। जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन, जिसको इन तीनों चीजों से प्यार नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। वो दिखता तो है मनुष्य, लेकिन वो एक्चुअल जो मनुष्य की परिभाषा उसमें नहीं है। हमें पानी चाहिए, जल चाहिए, तो कौन दे दे? सरकार दे दे। सरकार नहीं देगी। पानी जो आपको मिलता है उसे बर्बाद मत करो। 1 लीटर में नहा सकते हो तो 5 लीटर में मत नहाओ। 1 गिलास में धुल सकते हो तो 1 बाल्टी में हाथ मत धुलो। पानी बचाओ, एक बात। और जितना पानी आप पूरे साल भर में खर्च करते हैं, बरसात के दिनों में उतना पानी धरती में गड्ढा खोद के आपके अपने घर में, जहां आपके घर का पानी जाता हो, वहां एक गड्ढा खोद दीजिए। बरसात होगी, गड्ढे में पानी जाएगा, धरती में चला जाएगा, गड्ढा सूख जाएगा, फिर बरसात होगी, गड्ढे में पानी आएगा, सूख। दिस इज सिंपल वाटर कंजर्वेशन, बिना पैसे का। हमने इसको बांदा में किया। वर्ड अभी कल ही न्यूज छपा था, अमर उजाला में मैंने शेयर किया है। ठीक, तो ये तो हो गया जल। पानी चाहिए तो वो बोतल वाला पानी पीने लगे हैं क्या? कुआं तालाब नदी को छोड़ दिया लोगों ने नक्शेबाजी में। हमें कुआं तालाब नदी, जो हमारी नेचुरल बॉडी थी, वाटर बॉडी, वहां जाना। हमने बांदा में कुआं तालाब नदी, कुआं तालाब जियाओ अभियान चलाया। राजू श्रीवास्तव को बुला करके नदियों का पूजा कराया। बहुत सारे, तो कुआं तालाब नदी पे जाकर के, आप नदी के किनारे जाकर के 1 घंटा बैठ जाओ, दिन भर फ्रेश रहोगे। क्या देता है? देख के ऊर्जा मिलती है। तो हमें वाटर बचाना है। जंगल, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन को लेकर हाय तौबा मच गई। ऑक्सीजन जब इन्वायरमेंट में है ही नहीं, ऑक्सीजन कौन देता है? पौधा देता है। प्लांट लगा दो, प्लांट लगा दो, प्लांट तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन पैदा करने का प्लांट पौधा है। जहां भी रहो, घर में है, आपका बालकनी है, छत है, गगरी है, मटका है, 25-30 रुपये में गमला मिलता है, आप उसमें मिट्टी डालो, गोबर डालो और पौधा लगा दो। सुबह शाम उससे को पानी दो, ऑक्सीजन लो।
आप पेड़ काटने में लगे हैं, कोई पौधा लगाने नहीं चाहता, कहां से ऑक्सीजन मिलेगा? तो हमें जल और जंगल, यहाँ जंगल का मतलब है ऑक्सीजन से। मेड़ पे पेड़ लगाओ, घर में पेड़ लगाओ, गमलों में, कंटेनर में, डालडा के कंटेनर में, जो भी इस तरह की चीजें। हम जहां रहते हैं मेरा पूरा छत हरा भरा है, और जितने रोड हैं सब रोड के डिवाइडर में इतना पौधा लगा दिया है, लगता है हम जंगल में हैं। और हम रहते गोमती नगर में, हमारी आदत है, हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती। तीसरा जमीन, तो अभी पानी बचाओ, पेड़ लगाओ और ऑर्गेनिक खाओ। क्या जल जंगल जमीन का नारा है, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ और ऑर्गेनिक खाओ। अब हम जमीन में यूरिया पोटास खूब डाले, उसने जमीन का केचुआ मार दिया, जमीन का जो हमारी मदद करती थी सब मार डाली। वह जमीन ने हमें बीमारी दी। फिर हमें जाना है, गोबर की खाद डाल के जो पैदा करते हो उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो हमें ऑर्गेनिक खाना है। तो मेरा ये कहना है कि बचाव पे जाना है, उस बचाव में योगा, उस बचाव में मेडिटेशन, उस बचाव में खाना पीना। ये तो बताया मैडम ने, ये अर्चना नाम है आपका ना, अर्चना ने बताया ये। लेकिन हम इसमें 2 वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कि हमें गेम भी खेलना चाहिए, क्या वो भी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा वैल्यू एडिशन हमने किया, क्या, कल्चरल एक्टिविटी। सुबह उठ रहे हो, आपको किसी का गाना आया, कान में लगा के गाओ, या खुद गाओ या बजाओ, सीखो। किसी को तबला बजाना आता, किसी को हारमोनिया बजाना आता, किसी को ढोल बजाना। मत सोचो कि ये दुनिया हम पे हंसेगी। हमारे जो अपनी ताकत थे उसको मैंने बुरा समझ लिया। विदेशी जो गंदी ताकत थी जो यहाँ लागू ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट अलग, हमारा उसको हमने बड़ा मान लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। और आप लोग अच्छा करिए, जैसा कि इन्होंने बताया, मेरी सोशल साइट है makingyouhappy.org। इससे मैं सोशल काम करता हूँ, किसी कोई दिक्कत होती है जुड़ता है, मैंने चैट बॉक्स में डलवा दिया है रंजना से। और हम लोग इस समय एक मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। मॉडल गांव में उसका पहला काम ही है हेल्दी गांव। क्या हेल्दी गांव? तो आप लोग मॉडल गांव को पढ़िए, उसका साइट भी हमने डलवा दिया है, उससे भी जुड़िए। और जब तक गांव, महात्मा गांधी जी जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं करी, उन्होंने कहा गांव में स्वराज हो, गांव बड़ा हो। उन्हें पता था कि इंडिया में अगर गांव बड़ा नहीं होगा तो इंडिया आगे जा ही नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी बात हुई, उतना विकास नहीं हो पाया जितना उन्होंने चाहा। फिर अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे राष्ट्रपति मिसाइल मैन थे, जब वो आए तो उन्होंने पूरा नाम की स्कीम चलाई, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन अर्बन एरिया। उसकी बाकायदे किताब है, ठीक है। उन्होंने भी कुछ माहौल बनाया, उसी का एक प्रैक्टिकल, वो सब थियरी ज्यादा था, उसी का प्रैक्टिकल हम लोग मॉडल गांव का एक प्रोग्राम बना के कैसे गांव के युवाओं को खेती में, हम मॉडल गांव में हम खेती पे बात नहीं करते, हम एग्री बिजनेस पे बात करते हैं, कृषि व्यापार पे बात करते हैं। हम खेती घाटे का सौदा है, इसीलिए कोई गांव में ना रहना चाहता है और ना खेती करना चाहता है, क्योंकि वो घाटे का सौदा है। हम उसका सोल्यूशन निकाल के लाए हैं। तो हम मॉडल गांव पे हम चाहेंगे कि आप सभी लोग मिलके, हम लोग एक दिन मॉडल गांव पे चर्चा करें इस फोरम पे। हमारे मॉडल गांव के लोग, हम लोग रोज चर्चा करते हैं, तो एक दिन हम उस पर भी करेंगे, आपकी पूरी टीम सबको मिला के। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस माई गुड विशेष। जैसे आप अभी ये बता रही हैं, हमने कहा कि बीमार ही ना हो लोग, तो हमने योगा में बांधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मैं एक मॉडल बना रहा था योगा में, उसके लिए मैंने बहुत कुछ किए, उसकी पूरा प्रोजेक्ट है। ये रमेश राजपूत जो हैं, ये प्राइमरी के टीचर हैं, इनको योगा की महारत हासिल है। ये रस्सी योगा हमने तो पहली बार देखा, ये रस्सी योगा, जैसे पुराने जमाने में बदमाश किसी को मार के डाल देते थे, ऐसे ये सुबह मेरे पास 1.5 साल तक, लेकिन ये दुनिया को पता नहीं था, ये सुबह अपने मेरे पास 5 साढ़े 5 बजे आते, तो 7:30 बजे तक मैं इन्हीं के साथ रहता था। ये मुझे योगा कराना, डिस्कस, मतलब ये मेरी फिजिकल फिटनेस कराते थे। तो क्या करते, ये रस्सी से मुझे रस्सी से बांध के छोड़ देते थे 5 मिनट के लिए, मैं जैसे डाकू बांध के छोड़ देता, पूरा ब्लड सर्कुलेशन वो उसका तरीका है। ये लाठी योगा मुझे सिखाए, क्या लाठी से कैसे योगा होता है। तो इनको योगा की बहुत अच्छी जानकारी है, और यही इन्हीं के भरोसे मैंने योगा में बांधा बुलाया। फिर वो आगे बढ़ा तो पतंजलि के राकेश जैन जी को बुलाया था, यस व्यासा यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री, क्या नाम है उनका, डॉक्टर HR नागेंद्र जी को बुलाया था। हमने उसका पूरा मटेरियल इसको भेजा है रंजना को।
और मैं इन्हीं के साथ हमने क्या किया, एक वीडियो है, रंजना वो वीडियो चला दो, उसके बाद हम अपनी बात खत्म करें। रंजना चला सकती हो? कैन यू जी प्ले सर, दैट चल वीडियो? जाएगा। जी जी, पोएटिक आत्मा डिप्सन जी, आईटी प्लीज वीडियो चला दें। आईटी टीम प्लीज जो वीडियो दिया गया है वो चला दें। पोएटिक अगर ना चल पाए तो कोई बात नहीं, देख लो। शिप्रा डिप्सन को फोन मिला। और दूसरी बात यह है, जब तो तक वो तब तक हम चला लोग रहा है, बात करते रहते हैं, वो पीछे से चला लेंगे तो हम लोग रुक जाएंगे। हाँ हाँ, ये बहुत कठिन दौर से हम लोग चल रहे हैं। अभी मैंने एक मजाक में, आजकल बेवकूफ़ी की बातें ज़्यादा होती है कि गीता में प्रभु ने सिद्ध और असिद्ध की समता को, कर्म की कुशलता को योग कहा। सचमुच योग जोड़ता है आत्मा को परमात्मा से और शारीरिक मानसिक स्वस्थता से प्रसन्नता तक। इसी भाव के साथ जिला प्रशासन बांदा ने हर देह स्वस्थ रहे, हर मन प्रसन्न रहे, ऐसा सोचते हुए पूरे जनपद के सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूल कॉलेज, चौखट से आंगन तक हर घर योग करने और कराने की सामाजिक आध्यात्मिक चेतना जागृत कर दी। जिलाधिकारी बांदा के निर्देशन में प्रशिक्षित योगाचार्यों द्वारा योग सिखाने और उसके महत्व को समझाने पूरे जनपद में एक सामाजिक आंदोलन की नींव रख दी गई। सचमुच शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक प्रसन्नता रहेगी तो निश्चित ही शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी और व्यक्ति ज्यादा कुशलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब तो जनपद बांदा की हवा में भोर से ही ब्रह्मांड की अनादि ध्वनि गूंजने लगती है और निश्चित ही भविष्य में अपने मजबूत राष्ट्र के निर्माण हेतु स्वस्थता और प्रसन्नता के लिए गूंजती रहेगी। योग करिए, स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। जनपद में एक विशेष अभियान चल रहा है। हम लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का ये जो छोटा सा वाक्य है, इसे प्राप्त करने का एक सार्थक पहल है यह ये अभियान। इस अभियान में हम लोग प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक कार्यालय में योग विशेषज्ञों द्वारा योग कराने वाले लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। मेरा जनपद वासियों से अपील है, नागरिकों से विशेष अनुरोध है कि वो योगा को तन मन में बसा लें, अपने परिवार के साथ प्रतिदिन नियमित रूप से योगा करें, जिससे स्वस्थ, प्रसन्नचित और निरोग रहें। जिला प्रशासन, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश।
थे बाद में लास्ट में। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, जी सर। तो हम लोगों ने ये वीडियो बनवाया था और रमेश राजपूत को आइडिया है कि इस बीमारी में कौन योगा चलेगा, तो हम इसका भी प्रयोग करने लगे थे कि योगा। और सबसे पहले मैंने क्या किया, ये लोग पैथ वाले योगा का ट्राई करते हैं, सबसे पहले मैंने योगा पीएससी सीएससी में कंपलसरी किया। क्या? हाँ, पीएससी सीएससी में सुबह डॉक्टर साहब उठे, अपने सारे कैंपस में रहने वाले एएनएम नर्स, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बीमार है, जो दवाई कर, जो बीमारी हटाने जा रहा है वही बीमार है, सबका पेट निकला हुआ है। सबसे पहले मैंने योगा कहाँ से कराया, कहाँ कराया, और अब देखिए आपका पक्ष ये है, आपका पक्ष है कि आप मुझे 1 महीने का काम करने जा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप मुझे इसको भेजते रहना। मैं अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करूंगा, मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो क्योंकि अगर आप 7 से 8 करोगे, मैं भेज दूंगा, अगर वो ज्वाइन कर लेगा तो कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा, वो सीख जाएंगे। तो आप शेयर करिएगा, मैं शेयर करता रहूंगा। दूसरी बात यह है कि ये प्रिवेंशन क्योर में, आप प्रिवेंशन में क्योर की बात ही मत करो। अब प्रिवेंशन में क्या करेंगे, आप योगा कह रहे हैं, आप मतलब व्यायाम और मेडिटेशन, ध्यान, आप ये 3-4 बातों और ये खाने पे बात कर रहे हैं। खाने पर बहुत अच्छा ध्यान देना है। पेट्रोल वाली बॉडी है आपकी, उसमें डीजल डाल रहे हो, गैस डाल रहे हो, नहीं चलेगा। तो खाना, नाड़ी रसायन, मैं मौर्य जी का नंबर अभी भेज दूंगा, बात कर लीजिएगा, बहुत अच्छे हैं, उनका भी लेक्चर कराइए यहाँ अगर देख लो तो। आहार को इसमें एक जोड़ लीजिए, योगा और जो आप करे रहे, और 2 आयाम और हमने जोड़ा है। क्या? इसमें गेम को भी जोड़ो कि गेम से कैसे हमारा हेल्थ ठीक होता है, और कल्चर को भी जोड़िए प्रिवेंशन में। क्या? और एक लास्ट है, ये दिखावे पे बात जरूर करो कि हमने दिखावे में एक चार्ट बना दो, 2 मिनट लगेगा, कि दिखावे में हमने कप लिया, कुल्हड़ छोड़ दिया, चीनी लिया, गुड़ छोड़ दिया। तो ये जो दिखावा, हेल्थ में जो दिखावा हमने किया, दिखावे पर भी आप बात करिए, ठीक है ना। तो मेरे तरफ से मेरी बात समाप्त हुई। अब आप में देखिए, मेरा ये मेकिंग यू साइट मेरी सोशल साइट है, मॉडल गांव मेरा जो प्रोजेक्ट है, सोशल प्रोजेक्ट, जिस पर मैं लगातार इस समय काम कर रहा हूं, और वो मेरा सोशल साइट है। मैं छुट्टी के समय में, सैटरडे संडे जब छुट्टी होता है, तो मैं मॉडल गांव पे काम करता हूं। और पूरे देश के गांव को मजबूत करना है, गांव वालों को मजबूत करना है, गांव को मजबूत करना है, एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू रंजना, थैंक यू अर्चना, और सभी ऑर्गेनाइजर को। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के बारे में नहीं जानता हूं, क्योंकि आपकी 2-3 कंपनियां हैं। वो एक तो आवाहन है, और ये क्या है, मिरेकल है आपका, क्या नाम है? मिरेकल? क्यों मिरेकल? सर आवाहन रंजना जी का है, हाँ, वो उसकी सेक्रेटरी है, HCL के साथ बहुत काम कर रही है। और आपने जो बोला गाना, हमारी यूपी गवर्नमेंट गाना चला रही है, बाहर आओ कचरा निकालो, अरे तो बज रही है ये हमें मत बताओ। हम कल्चर बैकग्राउंड विभाग, में। सुनो, हम कल्चर विभाग में डायरेक्टर भी रहे हैं, और कल्चर विभाग में विशेष सचिव रहे हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि क्या है क्या नहीं। हम तो बहुत 12-13, ये भातखंडे यूनिवर्सिटी, अयोध्या सोर्स संस्थान, SN ने, भारतनाट्यम, हम सब चलाए, में पता है। हमने अपने कल्चर को गड्ढे में डाल दिया है, उस गड्ढे को निकालना है। और जो हम ये नाच गाना डिस्को लेके आए, वो हमें सूट नहीं करता। जिस तरह से हमें चीनी नहीं सूट करता है, गुड़ सूट करता है, तो हमें ये भी समझना है। एनीवे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और तीसरी कौन संस्था है तुम्हारी मिराइकल के अलावा? एक और कुछ बता रहे थे। प्रोटिक आत्मा सर। ये कौन आत्मा? प्रोटिक पोइटिक, आत्मा जी सर। पोइटिक यस पोइटिक आत्मा, यस सर। ये कौन चला रहा है? वो तो ये मिराइकल तो आप हो गई, और आवाहन वो हो गई, वो पोइटिक वाले कौन है? पोइटिक आत्मा कौन है, कौन चलाता है? सर संदीप जी हैं, अच्छा, संदीप ठीक। जी हैं, उनका उसमें एक्सपर्टी भी है, और IT एक्सपर्ट भी। और अभी इस गुड प्रोग्राम मॉर्निंग में मैम। IT का सब जी। मैम हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, यस यस बताइए। सर। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मैं नित्यम विश्वकर्मा CHO प्रयागराज से बोल रहा हूँ सर।
सर इस हाँ संस्था में अभी जो अर्चना मैम की तरह जो मेडिटेशन का क्लास चल रहा है, इसमें हमारे नेशनल लेवल पे जो आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का पोस्टिंग एक हेल्थ मिनट एंड वेलनेस रुको, सेंटर जो कि एक मिनट रुको 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 रुको। ये सीएचओ का एनएचएम में मैं ही देखता हूँ, राजेश झा आपके जीएम है, यही तो है? जी सर जी सर जी सर जी हाँ, सर। तो वो मैंने कहा तुम तो यार वेलनेस सेंटर हो, और जब मैं बांदा में सीएचओ की विजिट करने गया एजेडीएम, तो वो डॉक्टरनी बैठ के वो आला लगाए और सफेद वाला पहन के, वो वेलनेस सेंटर नहीं, उसने उसको एक एनएम सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने राजेश से यही कहा कि भैया मेरे, ये वेलनेस सेंटर के रूप में इसको होना चाहिए। आप लोग भी ना, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये आपको प्रमोट करना चाहिए सीएचओ के सेंटर पे, सर हम लेकिन बिल्कुल कर आप, रहे हैं। आज एक मिनट रुकिए, लेकिन आप लोग भी वही नकल कर रहे हो जो नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये भी कहना है कि सीएचओ वेलनेस सेंटर है, प्रिकॉशन पे काम करना चाहिए, क्योर पे नहीं। हाँ, और उसके लिए मैंने डिस्कस किया, वो चूंकि भारत सरकार से ही प्रेस्क्राइब्ड है, शुरुआती दौर है, तो अभी हम लोग क्योर से शुरू किए हैं और धीरे धीरे वेलनेस पे इस सीएचओ सेंटर को ले जाएंगे। चलिए ठीक है, क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ सर, तो हम लोग वेलनेस, सर ऐसा आपने कहा, वो सही कहा आपने, प्रिवेंशन एंड क्यूरेशन। तो हम लोग मेडिटेशन, योगा, ये सब सीख कर हम लोग गांव के लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि गांव में थोड़ा प्राथमिक उपचार की भी जरूरत है। जैसे मीन्स कि कोई अगर किसी को चोट लग गया है तो पट्टी के लिए उनको दूर जाना पड़ता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर सीएससी पे, तो एटलीस्ट वो हमारे नियरेस्ट सेंटर पे आए और उनका हम लोग जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो ट्रीटमेंट करें। उसके साथ साथ हम लोग वेलनेस एक्टिविटी पे ज्यादा ही ध्यान देंगे, जैसे योगासन और मेडिटेशन। इसका हम लोग का सेशन भी चलेगा। अभी तो हम लोग लर्निंग पीरियड में है, तो पैंडेमिक चल रहा है, इस वक्त इतना हम भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अभी हम अर्चना मैडम के माध्यम से हम लोग ये सीख रहे हैं, ताकि लोग गांव में घर घर जाके लोगों को ये संदेश दे सके कि योग से ही होगा, और मेडिटेशन भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हम उनको सिखाएंगे। तो ठीक है, इसमें मैं सर अभी राजेश, नेशनल लेवल पे, ठीक है, समझ गया। मैं अभी उसे राजेश से कह देता हूँ कि तुम्हारे इस सेशन को सीएचओ वाले ग्रुप में शेयर कर दे, जो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन करे। अभी मैं राजेश झा जी से, जीएम साहब से बोल देता हूँ। ओके, थैंक यू, बिकॉज ऑलरेडी वी आर लेट, और ये 54 हो गया है, आपके पास 1 घंटे का प्रोग्राम था। ठीक है रंजना, कंटिन्यू इन योर ओन वे, ऑल द बेस्ट। My good wishes, you people are doing exemplary, very amazing work. I am with you and I will support in every aspect. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, हम लोग के साथ होने के लिए, सबको प्रोत्साहन करने के लिए। और जैसे योग को घर घर पहुंचाया है, आप पर हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि मेडिटेशन भी घर घर पहुंचाना है सर। और जो हमारा मेडिटेशन है, उसमें खेल से भी मेडिटेशन है। हम लोग जो बचपन में घूम लड़कियां घूमती थी, घूम घूम के गिर जाती थी, वो भी एक मेडिटेशन का तरीका है, जो कि विज्ञान भारत में बताया गया है। और हमारे मेडिटेशन में म्यूजिक मेडिटेशन भी है, जो अल्फा वेव्स होते हैं, डेल्टा वेव्स होते हैं, उसको लेके भी मेडिटेशन है। और मेडिटेशन के जब बिलीफ सिस्टम में हम करते हैं, तो हम नेचर से खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। तो मेडिटेशन एक ऐसा चीज है जिससे हम शायद हर पहलू को ले लेंगे, क्योंकि हम नेचर से जुड़ जाएंगे। और जब हम वापस से सनातनी हो जाएंगे, नेचर में रहने लगेंगे, नेचर की चीजें करने लगेगी, तो हमें लगता है कि हम एक बेहतर सशक्त भारत, सशक्त ब्रह्मांड का निर्माण कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुमूल्य टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच सर। हाँ, अभी मैं राजेश झा को तुरंत फोन करके कह दे रहा हूँ, राजेश झा से आप लोग बात कर लीजिएगा कि वो आपके इस सेशन को सीएचओ के ग्रुप में डाल दें और लोग ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ राजेश, अच्छा सुनो, ये आवाहन वाले ये बहुत बढ़िया आज से शुरू किए हैं, मैंने उद्घाटन किया है। हाँ प्रणाम। ये उसमें बहुत सारे सीएचओ हैं, तो ये सुबह 7 से 8 बजे तक योगा, मेडिटेशन, ये सब जो हम लोगों के वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट है, वही चला रहे हैं। तो आप सबको कहिए कि वो लोग जो है इसको ज्वाइन करें 7 से 8 और सीखें। पहले खुद करें तभी तो कराएंगे, है ना। ये रंजना जी का नंबर मैं भेज दूंगा, बात कर लेना, और सब लोग ज्वाइन करें, ठीक है ना। आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू। हाँ, हमने राजेश से कह दिया, राजेश से बात कर लेना, जो हमारे जीएम। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपको आने के लिए। ठीक है, आप लोग अपना काम करो, कंटिन्यू करो। ओके सर। हमें लगता है कि हम 1 BHK, 2 BHK
पेंट हाउस घर में रहते हैं, ये गलत है। हम ऐसे कोई भी जगह नहीं रहते, हम अपने शरीर में रहते हैं। तो हमने पहला दिन एक संकल्प लिया था कि हम अपना तन, मन, सोल, आत्मा का ख्याल रखेंगे और खुद ठीक रहेंगे तो औरों को ठीक कर पाएंगे। हम ब्लेम गेम में नहीं जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि भारत सरकार क्या कर रही है, हम नहीं देखेंगे मीडिया क्या कर रही है, हम ये नहीं देखेंगे कि वार्ड बॉय क्या कर रहा है। हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेंगे, हम खुद को सशक्त बनाएंगे। हम तीसरी लहर आने से पहले अपने माइंड, बॉडी, सोल को सशक्त करके रखेंगे। जैसे सर ने कहा था प्रिवेंशन, हम प्रिवेंशन पे काम करेंगे। हमें पता है सीएचओ को जाना है, बिलीफ सिस्टम पे मुझे बहुत कुछ कराना था, लेकिन हम लोग 7 से 8 रोज जुड़ रहे हैं, तो वहां मैं और कराऊंगी। आज का चैलेंज है ग्रैटिट्यूड चैलेंज। ग्रैटिट्यूड चैलेंज क्या है? जैसे आपको बताया गया था, पोस्चर में आपको जाना है, पोस्चर में जाकर आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। आज का पोस्चर क्या है? हार्ट पे। जब हम दिल से जुड़ते हैं तब हम लोगों से जुड़ते हैं। तो हम हार्ट पर हाथ रखकर थैंक यू करेंगे। किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चीज के लिए फेसबुक पर लाइव जाएंगे और हार्ट पे हाथ रखेंगे और धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम जहां अपने दिमाग को लगाता है, दिमाग वहीं देखना शुरू करता है। अगर आप जल के तरफ देखने लगे तो हर चीज जल से जुड़ा दिखेगा। आप अंधकार को देखेंगे तो अंधकार ही दिखेगा। आप प्रिवेंशन को देखेंगे तो प्रिवेंशन के बहुत माध्यम दिखेंगे। आप क्योर पे जाएंगे तो बहुत सारा क्योर दिखेगा। तो आज का चैलेंज है, आप दिल पर हाथ रखेंगे और आप थैंक यू करेंगे। छोटी हो या बड़ी हो, जब आप रोज थैंक यू करेंगे तो आपको अपने लाइफ में अच्छी चीजें दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है 9 बज के है, सीएचओ को ड्यूटीज पे जाना है, तो मैं आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और उम्मीद है कि 7 से 8 सब जुड़ेंगे और हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे। आपका सर्टिफिकेट आपको टाइम पे मिल जाएगा और जो चैलेंज नहीं किए हैं अब भी उनके पास मौका है, आप चैलेंज कर लें सारा का सारा। और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए आपको पेज भी पता है, लिंक भी पता है, ईमेल भी पता है। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब आप अपना टाइम देते हैं तो आप टाइम नहीं देते हैं सिर्फ, आप अपनी जिंदगी के कुछ पल देते हैं, जिंदगी देते हैं। हम पर विश्वास कर कर कंटिन्यूअस 3 दिन रोज 1 घंटा हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप इस चीज को और दूर दूर तक पहुंचाइए। एक ही प्रण है मेरा, मिलियंस एंड मिलियंस हर कोई मेडिटेशन करे, योग करे, स्वस्थ रहे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। एवरेज रहकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की कामना करना फ्रस्ट्रेशन लाता है। तो अपने लंग्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ, अपने हार्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ, अपने हाथ को एक्स्ट्रा, अपने मसल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ। और इसके लिए हम जो कर सकते हैं हम वो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। सभी लोगों को ज्वाइन करना है 7 से 8 पर डे, 1 महीना चलेगा सेशन। यस मैम। और हम लोग इसी तरह से सर को बुलाते रहेंगे, बीच बीच में और हम लोगों को बुलाएंगे, उनका हम स्पीच लेंगे। तो यही शुभकामनाएं हमारी आप लोग के साथ में। धन्यवाद। थैंक यू मैम।